Good morning to one and all present here. Me Krishanu Jain from class 9C is again going to present one of my video which I have made. So what do you think, how government have managed this pandemic? So our today's topic is also based on it, as it is disaster management on COVID-19 in India. Now let's start. Now we are going to see the outlines of what we are going to learn. First we are going to see what is disaster management, then the Epidemic Diseases Act, 1897, then the Disaster Management Act, 2005, the Essential Services Maintenance Act 1968. Disaster management adapted by India, impact of pandemic on clinical care, and at the last we are going to watch a video and will know more about it. Now let us see what is disaster management. Disaster management refers to the measures taken for the safety and protection of life and property from natural or man-made disasters. This means being prepared for disasters, fighting disasters effectively, ensuring the safety of life during disasters and helping in rebuilding society after the disaster. Now we are going to learn about the Epidemic Diseases Act, 1897. Disaster management refers to the measures taken for the safety and protection of life and property from natural or man-made disasters. This means being prepared for disasters, fighting disasters effectively, ensuring the safety of life during disasters and helping in rebuilding society after the disaster. Now what is the Disaster Management Act, 2005? Citing a need for consistency in the application and implementation of various measures related to containing the spread of COVID-19 across the country, Disaster Management Act, 2005 was invoked. Section 6 and Section 10 of the Act empowers the National Authority and the National Executive Committee to prescribe policies and guidelines for disaster management and ensure compliance with the central government directions. The Ayush Ministry directed all state-level ASU and H authorities to stop and prevent advertisement of Ayush-related claims for COVID-19 treatment in print, TV, and electronic media. Now we are going to see the Essential Services Maintenance Act, 1968. The Epidemic Diseases Act 1897 is that, it empowers state governments to issue a temporary regulation to prevent the outbreak as ordinary provisions of the laws and force are insufficient. Several states issued regulations using this act. Some state regulations such as Uttarakhand, Chhattisgarh, Tamil Nadu and Madhya Pradesh specify that information of COVID-19 cannot be printed and published without the prior permission of the State Health Department. Now we are going to see disaster management adapted by India. Proof of concept with social experiment : as per a WHO recommendation, social distancing is key for controlling COVID-19. Achieving social distance for a country with population of 1.3 billion can only be possible with complete lockdown, which is not an easy task to enforce on public without proper experimentation and communication. Hence call for Janata curfew by Prime Minister Modi, requesting entire country to voluntarily stay at home for 12 hours helped not just in understanding pain points prior to #21-day lockdown but also gave an experience for public to make prior preparation, which also caused very less disruption due to weekend. This is also clubbed with a call to #applause for health workers. 1. Proactive approach. India is one of the first country for imposing international travel ban, screening of 1.5 million international passengers on arrivals, and quarantine those with symptoms, followed by a number 21-day lockdown. While initially it was criticized by experts due to economic repercussions, it got an acceptance globally, and rest of the countries started following the same. This is applauded by experts from WHO and UN as proactive approach. Holistic approach followed by government, including direct benefit transfer, support for immigrant labors, work from home opportunities and huge base of volunteers. As per the statistical rate of growth-based analysis by Health Ministry, cases could be projected to spiral to 8.2 lakh by April 15th, registering a 41% cumulative growth rate. People management. COVID impact is not limited to physical health of people, but it is causing huge stress among people, due to which there are some cases of even prominent people committing suicide or died of heart attack. PM Modi announced number 9 PM FOR 9 minutes challenge on April 5th to turn off lights and lit lamps for 9 minutes at 9 PM as a mark of unity. As per Ministry of Power, they expected reduction of demand in power by 12 GW, but after this event they realized that demand reduced by 32 GW, which proves overwhelming response by public for this challenge. As per the medical experts, lighting of lamp and standing for cause will help in distressing. Hence is another exercise by government which is executed at free of cost, but gave best results. Preparation and collaboration.
As there is no clear evidence if lockdown and social distancing can help in containing COVID. Proactive announcement of number 21A lockdown is clearly helping government for spikes in cases. During this lockdown period, government is working on setting up COVID specialty hospitals, isolation wards, procuring ventilators and PPE kits, etc. India is well ahead of the curve in terms of preparation. For a country as large as India, the number one priority for the government continues to be a containment strategy. The lockdown, sealing off the red zones, are some of the measures to stop the spread of the virus. To help in this, the government of India also launched mobile app Arogya Setu that is aimed at curbing the spread by effective tracking and monitoring of COVID-19 infected patients, regular updates, notifications and alerts from mygov.in. Arogya Setu app is appreciated as one of the innovative solution by WHO. Now we will see the impact of pandemic on clinical care. A fearsome health calamity, the novel coronavirus of 2019 struck the world and created havoc with its rapid spread. Various countries got affected in terms of economic and other losses, and the extent of impact depended on the pre-existing financial arrangement of the country and various other factors. Due to this outbreak, healthcare sector was one of the worst affected. Also, it needed most investment and had to respond quickly and effectively to manage this crisis. Among the countries affected, India, a financial center with significant worldwide connectivity, was impacted directly, leading to an imminent breakdown of economical markets. This paper tries to understand the different aspects of the economic challenges faced by the Indian healthcare system and devise the possible measures to overcome the effect of COVID-19 pandemic in India. It analyzes the short-term and possible long-term impact of this pandemic on the healthcare sector of India in terms of efficiency and equity. The Indian government had acted rapidly to allocate funds, resources and manpower. It announced relief packages for the marginalized communities and covered costs. Specific research centers in the country need to work to quickly mitigate any further damage. Now it's time to watch a video. Hope you will like it. नमस्कार दोस्तों, 3 लाख कोरोना वायरस केसेस पर डे अभी तक का ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन ये सिर्फ एक ऑफिशियल डेटा है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई राज्यों में भारी डिलेज देखने को मिल रहे हैं टेस्टिंग में, और कुछ जगहों पर टेस्टिंग करने से रिफ्यूज कर दिया जा रहा है लोगों को। नतीजा ये कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है जो असलियत में कोरोना वायरस केसेस हैं वो रिपोर्टेड नंबर से 10 से लेकर 29 गुना ज्यादा है। तो बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो 3 लाख केसेस पर डे हैं ये एक्चुअल में 30 लाख केसेस पर डे हैं। दूसरी तरफ कोविड-19 से हुई डेथ्स का जो ऑफिशियल नंबर रिपोर्ट किया जा रहा है और जो डेटा क्रेमेटोरियम से आ रहा है कोविड-19 विक्टिम्स की डेड बॉडीज का, उनमें भी कहीं पर 5 गुना, कहीं 10 गुना तो कहीं 20 गुना का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अहमदाबाद में 12 अप्रैल को सिर्फ 20 कोविड डेथ्स ऑफिशियली रिपोर्ट करी गई, लेकिन एक लोकल अखबार है संदेश, उसने बताया कि सिर्फ एक अस्पताल में अहमदाबाद के 63 से ज्यादा डेथ्स देखने को मिली थी सेम दिन। भोपाल में सेम चीज देखी गई और भी बड़े स्केल पर। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जहां पर पिछले 12 दिनों का ऑफिशियल डेथ काउंट सिर्फ 34 था, रियलिटी में जो क्रेमेटोरियम्स और ग्रेवयार्ड से आ रहा डेटा था वो 800 से ज्यादा कोविड-19 की डेथ्स बताता है सेम पीरियड में। फाइनेंशियल टाइम्स ने यही क्रेमेशन के डेटा को और ऑफिशियल डेथ काउंट के डेटा को कंपाइल किया अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग शहरों के लिए, और यह पाया कि यह चीज गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है इस तरह का फर्जीवाड़ा, और बिहार में भी यह देखने को मिला है कुछ हद तक। हालत इतनी खराब है कि भोपाल में कुछ लोग कहते हैं कि आखिरी बारी उन्होंने इतनी डेथ्स भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पर देखी थी। गाजियाबाद से कुछ मीडिया रिपोर्ट करते हैं कि फुटपाथ पर जलाया जा रहा है अब डेड बॉडीज को, क्योंकि शमशान घाट में जगह खत्म हो गई। कोरोना के इस महामारी के काल में सरकारी आंकड़े किस तरीके से धोखेबाजी कर रहे हैं, इसका जीता जागता सबूत है हिंडन के इस शमशान घाट के बाहरी हिस्से पर फुटपाथ पर जलाई जा रही ये लाशें। दरअसल ये सभी लाशें कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उनके ही हैं। सूरत में जो लोहा था शमशान घाट में वो पिघलने लग गया है, क्योंकि लगातार इतनी बॉडीज को वहां पर जलाया जा रहा है। ये नंबर्स की फजिंग करना और टेस्टिंग में डिलेस करना सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है प्रॉब्लम्स का जो हमें इस क्राइसिस में फेस करनी पड़ रही है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो सरकार के ऊपर है। सरकार चाहे तो हमें असली डेटा दिखा सकती है, कोई इतनी मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है इसे सॉल्व करना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों की तरफ से आ रही है। जैसे ही यहां पर हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो रही है, ड्रग्स की कमी हो रही है और मेडिसिन की कमी हो रही है, कुछ लोगों ने यहां पर ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है। रेमडेसिविर ड्रग नाम सुना होगा आपने, आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है। एक एंटीवायरल ड्रग है जो कुछ लोग मानते हैं कोविड-19 की ट्रीटमेंट में मदद करता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, शॉकिंग लगेगी सुनने में आपको, जितनी डिमांड इसकी देखने को मिल रही है देश भर में,
आज के दिन जो भी रिसर्च पेपर्स आए हैं उन्होंने बताया है कि इसकी इफेक्टिविटी बहुत कम है। ज्यादातर केसेस में यह मदद नहीं करता कोविड-19 के अगेंस्ट। इसके बहुत ही स्पेसिफिक यूज केसेस हैं। बहुत कम ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर डॉक्टर्स एक्चुअली में रेकमेंड कर रहे हैं कि इसे इस्तेमाल किया जाए कोविड-19 के विक्टिम्स पर। लेकिन फिर भी यह बहुत शर्म की बात है कि कैसे कुछ लोग देश में जनता के पैनिक का फायदा उठाकर यहां पर ब्लैक मार्केटिंग करने लग रहे हैं इस ड्रग की। इसका एक्चुअल प्राइस है 2,500 रुपए पर वियर। वडोदरा में 2 लोगों को अरेस्ट किया था 7,500 रुपए की कॉस्ट में इसे बेचते हुए, और दिल्ली में 25,000 तक की कॉस्ट में ये बिकने लग रहा है ब्लैक मार्केट। मतलब कौन लोग हैं, जरा सोचकर देखो, शर्म करो कुछ अपने ऊपर। यहां पर लोग मरने लग रहे हैं और लोगों की डेथ से तुम पैसे कमा रहे हो। क्या करोगे इन पैसों का? शर्म आनी चाहिए। मतलब जब इन पैसों को स्पेंड करने जाओगे जरा सोचकर देखना। लोग मरे हैं और लोगों की मौत से तुमने ये पैसे कमाए। ये ब्लैक मार्केटर्स अक्सर सिस्टम में लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। फार्मा कंपनी ये ड्रग को बेचती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स मेडिकल स्टोर्स को ये ड्रग को देते हैं, और ये जो मेडिकल स्टोर में काम करने वाले लोग होते हैं ये अक्सर बेच डालते हैं इन मिडलमैन को और इन ब्लैक मार्केटर्स को एक एक्स्ट्रा हाई कॉस्ट पर, और वो जाकर अपना बाद में प्रॉफिट कमा लेते हैं और जनता को इतने हाई दाम पर इसे बेचते हैं। लेकिन इन सबको छोड़कर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से देश आज के दिन गुजर रहा है इस क्राइसिस के दौरान, वो है हॉस्पिटल बेड्स की कमी होना और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होना। बीबीसी के अनुसार दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई 99% आईसीयू बेड्स हॉस्पिटल्स में फिल हो चुके हैं ऑलरेडी। जिस समय ये वीडियो बना रहा हूं मैं, दिल्ली में कुछ अस्पतालों की और कई और स्टेट्स में, कई और शहरों में कुछ अस्पतालों की ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ कुछ चंद घंटों की रह गई है। मैक्स हॉस्पिटल है पतपड़गंज में, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ 3 घंटे की रह गई थी। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट को अर्जेंटली अप्रोच किया इस सिचुएशन को लेकर। हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि स्टील और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करी जा रही है उसको एकदम से स्टॉप किया जाए और वहां से ऑक्सीजन को डाइवर्ट किया जाए इन मेडिकल पर्पसेस के लिए, ताकि लोगों की जान बच सके। इसी मैक्स हॉस्पिटल में 400 से ज्यादा लोगों की लाइफ्स डिपेंडेंट हैं इस ऑक्सीजन की सप्लाई पर, जो कि कट हुई तो इतने लोगों की जानें जाएंगी। पूरे देश भर में आज ऐसी ही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि जिस भयानक हेल्थ केयर क्राइसिस से देश गुजर रहा है, इसका ब्लेम लोगों से ज्यादा सरकार पर जाता है। एक इंडिविजुअल इंसान के कंट्रोल में क्या है? मास्क पहनना ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना ना करना। लेकिन इससे ज्यादा एक इंडिविजुअल इंसान कितना कंट्रोल कर सकता है? लेकिन दूसरी तरफ सरकार के पास 6, 7, 8 महीने का चांस था। जब फर्स्ट वेव खत्म हो गई थी कोरोना की, सरकार के पास मौका था और हॉस्पिटल बेड्स बनाए और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो सप्लाई है उसको ऑलरेडी सही करे, वैक्सीन की डिप्लॉयमेंट सही तरीके से जल्दी से करे। लेकिन सरकार ने ये सब नहीं किया। सरकार ने बहुत टाइम वेस्ट किया। Scroll.in की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 8 महीने से ज्यादा तक का समय लगा दिया सिर्फ टेंडर फ्लोट करने में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के। आज के दिन 150 में से सिर्फ 5 प्लांट्स ऑपरेशनल हुए हैं जो सरकार ने इनिशियली प्लान किया था। अगर सरकार ये टाइम वेस्ट ना करती और पैसे वेस्ट ना करती, सरकार ने कहा सेंट्रल विस्टा में 20,000 करोड़ रुपए लगाने का फैसला किया इसी समय में जब देश कोरोना की क्राइसिस से गुजर रहा था। अगर सरकार इन चीजों में फोकस करती तो आज के दिन ये स्थिति ना आती। अब कुछ लोग कहेंगे दोस्तों कि क्यों इतना पॉलिटिकल हो रहा हूं मैं, क्या जरूरत है पॉलिटिक्स को इस चीज में इन्वॉल्व करने की? लेकिन रियलिटी यही है दोस्तों कि पॉलिटिकल फेलियर से ही ऐसी क्राइसिस क्रिएट होती हैं देश। रियलिटी यह है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है वही डिसाइड करती है ऑक्सीजन की एलोकेशन कैसी करी जाएगी देश भर में, वैक्सीन को कैसे प्रोक्योर किया जाएगा, कैसे एलोकेट किया जाएगा। आज के दिन अगर आप खबर में सुनते हैं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर धन्यवाद कर रहे हैं सेंटर गवर्नमेंट का ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए, या फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर सेंटर गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन एलोकेशन पंजाब की बढ़ा दी जाए, या फिर केरला में बात करी जा रही है कि जो वैक्सीन की एलोकेशन की गई है केरला के लिए उसे बढ़ा दिया जाए, वो सिर्फ 1/10 है डिमांड की। ये सब इसलिए क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है वैक्सीन को, ऑक्सीजन को प्रोक्योर करने के पीछे, एलोकेट करने के पीछे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक सारी सरकार बिजी थी पॉलिटिकल रैली करने में, तो कहां इन्हें फुर्सत मिल पाती ये सब काम करने के लिए। इसलिए सरकार ने यहां पर लोगों को आत्मनिर्भर होने पर छोड़ दिया है। पूरा सोशल मीडिया आज के दिन आप देखोगे भरा पड़ा है। लोग कहीं पर किसी मेडिसिन की रिक्वेस्ट करते हैं, कहीं पर हॉस्पिटल बेड की रिक्वेस्ट करते हैं, तो कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वेस्ट करते हैं। हालांकि ये काफी अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। इस पे ज्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं बनाए गए हैं कि एक वेबसाइट हो जहां पर लोग डाल सकें कि अच्छा मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है, और जो लोग उस एरिया में रहते हैं वो कांटेक्ट कर सकें उन्हें, जो मदद ऑफर कर सकते हैं।
ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ये अनऑर्गेनाइज तरीके से ही हो रहा है सोशल मीडिया पर। हालांकि कुछ लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज करने की जरूर कोशिश करी है अपनी टूल किट्स बनाकर, तो उनका लिंक मैं नीचे पिंड कमेंट में डाल दूंगा और अपडेट करता रहूंगा जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी। उम्मीद है उससे आपको कुछ मदद मिले अगर आज के दिन आपको मदद की जरूरत है तो। ऐसे ही हौसला बनाए रखिए और उम्मीद मत खोइए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching the video. Hope you liked it. We'll see you all next time. Till then, goodbye.